दक्षिण बंगाल के सबसे बड़े वाणिज्यिक संगठन फोर्सबेकी के एक प्रतिनिधि मंडल ने संगठन के अध्यक्ष सचिन राय के नेतृत्व में आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आसनसोल नगर निगम क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं, खासकर ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या का समाधान निकालना था। संगठन ने मेयर को एक लिखित पत्र भी सौंपा जिसमें इन समस्याओं के निराकरण के लिए अनुरोध किया गया। प्रतिनिधि मंडल में सचिन राय के अलावा संगठन के वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र प्रसाद खैतान, सपन चौधरी और अन्य सदस्य शामिल थे। মিটিংয়ে হলো কি কথাগুলো নিয়ে ওই রাস্তার জন্য ওনারা দিয়েছেন, যেহেতু সামনে দুর্গাপূজা আছে আর বৃষ্টিও খুব হয়েছে, বৃষ্টির ফলে অনেক জায়গায় রাস্তাঘাট খারাপ হয়েছে। তো সেই রাস্তাগুলো বানানোর জন্য তো আমরা অলরেডি কর্পোরেশন থেকে আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা গত এক মাস থেকে ঘুরে তারপর বৃষ্টি হয়েছে এবং যেগুলো খারাপ আছে আমরা কাজ করছি বা আগামী দিনে কাজ করবো, পুজোর আগে যাতে হয় ব্যবস্থা। কয়েকটা ফ্লাইওভার এবং পার্কিংয়ের দাবি করে দাবি না বললাম, আসানসোলকে জ্যাম মুক্ত করার জন্য এগুলো দরকার। তো আমরা বললাম অলরেডি আমরা নিজেরাও ভেবেছি, আমরাও কর্পোরেশন থেকে ভেবেছি এবং আমরা এটা এখন তো বলতে পারবো না, আমরা যেটা ওভারব্রিজ যেটা করা হচ্ছে তো সেটাকে অলরেডি আমরা তিনটে আমরা মানে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের দেখানো করেছি। তো দেখানোর পর আমরা অলরেডি আমাদের জায়গাতে পাঠিয়েছি। फोर्सबेकी फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का एक डेलीगेशन हमारे प्रेसिडेंट के नेतृत्व में मेयर साहब से मिला और जो विभिन्न समस्याएं हमारे इलाके की हैं इनके जुरिस्डिक्शन में उसके ऊपर चर्चा हुई, चिंतन हुआ, डिस्कशन हुआ। जैसे आसनसोल में जो जानजोट की जो समस्या है उसके लिए हम लोग काफ़ी दिनों से बोलते आ रहे हैं कि एक फ्लाईओवर यहाँ बनना चाहिए उषा ग्राम से और भगत सिंह मोड़ तक या गोपाल मोड़ तक। तो उससे क्या होगा, ऊपर गाड़ी चली जाएगी तो नीचे का शहर खाली हो जाएगा। नंबर 2, ये दामोदर के ऊपर में एक ब्रिज बनने से उर्लिया वाकोड़ा से हम लोग का जोगाजोग अच्छा होगा। पार्किंग की तो भीषण समस्या है यहाँ पर। पार्किंग के लिए हम लोग स्पाइरल मल्टी स्टोरेज स्पाइरल पार्किंग जो अन्य सब शहरों में है इंडिया में तो बहुत सक्सेसफुली चलती है, वो देना चाहिए। चौथी बात है रानीगंज इलाके के अंदर में 300 मीटर के भीतर में और वो कोई मकान का परमिशन एक बरस से नहीं दे रहे, कोई प्लान ही पास नहीं कर रहा है। शहर को क्या डेट करना है क्या, इनको क्या प्लानिंग है इन लोग का, उसके बारे में कहते हैं हमारा दोष नहीं है, आप अड्डा से बात कीजिए। और रोड्स की हालत इतनी ख़राब है पूरे इलाके में, खाली रानीगंज नहीं, रानीगंज तो है ही, उसके अलावा सब जगह आसनसोल की रोड्स ख़राब है। उन रोड्स के बारे में कहा, उन्होंने कहा पूजा अब उसके पहले हम लोग कुछ काम कर देंगे। मेयर ने क्या आश्वासन दिया? वही बोला पूजा के पहले हम कुछ काम कर देंगे, कुछ का DPR हो गया है, पास कर देते हैं। ये आश्वासन दिया, आश्वासन तो हम लोगों को बराबर मिलता है ना, अच्छी बात है, आश्वासन बराबर मिलता है, काम हो तब जाने। আমরা মেয়র সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। আসানসোলে বিভিন্ন এলাকায় যে রাস্তাগুলো খারাপ আছে, পুজোর সময় যেগুলো সে রাস্তা মেরামত করে ঠিক করা হয়, আসানসোল, রানীগঞ্জ, বরাকর, জামুরিয়া সব এলাকায় আসানসোল কর্পোরেশন এরিয়ার মধ্যে যে সমস্ত রোড রয়েছে, ড্রেনেজ সিস্টেম রয়েছে, এগুলো যাতে ঠিকমতো করা হয়, পুজোতে যাতে যারা সমস্ত পুজো দেখতে যাবেন তাদের যাতে অসুবিধার সম্মুখীন না হয়। প্লাস আসানসোলে যেটা মেন প্রবলেম আমাদের বলছি মানে পারমানেন্ট সলিউশনের জন্য এবং কনস্ট্রাকটিভ যে কাজ যদি করতে হয় তাহলে একটা ফ্লাইওভার দরকার। আমরা বহু বছর ধরে ফ্লাইওভারের ডিমান্ড করেছি, সেটাও আমরা বললাম। এবং আসানসোল মার্কেটে যেগুলো সব থেকে পার্কিংয়ের একটা সমস্যা রয়েছে, সেই পার্কিং সমস্যা যদি কনস্ট্রাকটিভ চিন্তা করা হয়, পারমানেন্ট সলিউশনে চিন্তা করা হয় তাহলে একটা মাল্টি স্টেট পার্কিং প্লাজা দরকার। সেটা উনি অ্যাকসেপ্ট করেছেন যেটা প্রয়োজন এবং সেটার জন্য আমরা লোকেশনও বলেছি, বাস স্ট্যান্ডের পরে যে জায়গাটা রয়েছে ওইখানে যদি করা হয় সব থেকে ভালো। উনি বললেন হ্যাঁ PPP মডেলে যদি হয় সেটা খুবই ভালো হবে। এটা সমস্যা রয়েছে। প্লাস আমরা আরও কিছু বলেছি বিভিন্ন এই ডিস্ট্রিক্টে ব্যবসায়ীদের জন্য সুবিধা হয়, দামোদর রিভার ওপর একটা ব্রিজ, সেটা বহুদিনের পরিকল্পনা, ওটা আমাদের বিভিন্ন জায়গা আমরা চিঠি করেছি, CMকেও আমরা চিঠি পাঠিয়েছি। তো এইগুলো আসানসোলের ডেভেলপমেন্টের জন্য এবং আসানসোল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের জন্য এগুলো খুবই প্রয়োজন। সেটা মেয়র আমাদের সঙ্গে একমত হয়েছেন এবং মেয়রও বলেন না এই দুটি কাজ খুবই আমরা প্রায়োরিটি করবো এবং অলরেডি ক্যালকাটাতে একটা সার্ভে টিম করে গেছে এবং এই যে ফ্লাইওভার উনি বললেন আপনারা একটা বলেছেন, আমি 4টে করার জন্য বলেছি। তো সেটা বলেছেন, আমরা আশাবাদী যদি ভবিষ্যৎ হয় আসানসোলের পক্ষে ভালো হবে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।
नमस्कार। की खबर पक्की है कि भाई अब तो सभी बोलते हैं चाप मतलब वीर जी, एंड वीर जी मलाई चाप वाले फ्रॉम गीता कॉलोनी, द फेमस चाप जो टेस्टी है, हेल्दी है, साफ है, अब हमारा नया आउटलेट लेकर आ रही है 25 सितंबर को शाम 7 बजे GT रोड ऑपोजिट LIC ऑफिस नियर AG चर्च स्कूल, आसनसोल, वेस्ट बंगाल, जहां आपको मिलेगा सबसे हेल्दी, सबसे टेस्टी चाप विच इज फिश, चिकन, मटन, ऑल प्योर वेज। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, और मैं आप सबसे मिलता हूं 25 सितंबर को। आसनसोल अदालत में अधिवक्ताओं के एक दल ने आसनसोल कुल्टी थाना अंतर्गत रामपुर MVI चेक पोस्ट पर तैनात 4 MVI अधिकारी सुदीप्तो मजुमदार, संजय मंडल, ऋषि शुभा और शिव औरंग के दादागिरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अधिवक्ता बीरेंद्र कुमार सिंह ने आसनसोल अदालत में चारों अधिकारियों के खिलाफ 356(1), 356(2), 351(1) BNS के तहत मामला दर्ज करवा दिया है। इसके अलावा उन्होंने चारों अधिकारियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, परिवहन मंत्रालय, पश्चिम बर्धमान के जिला शासक सहित आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट को भी एक लिखित शिकायत की है, जिसमें अधिवक्ता ने MVI अधिकारियों के ऊपर यह गंभीर आरोप लगाया है कि वह 27 जुलाई 2025 को सुबह करीबन 10 बजे कुल्टी थाना अंतर्गत रामपुर स्थित चौरंगी चेक पोस्ट पर MVI अधिकारियों द्वारा पकड़ी गई RJ 02 GC 6617 संख्या की एक ट्रक की पैरवी करने ट्रक मालिक के बुलावे पर 29 जुलाई 2025 को सुबह करीबन 10 बजे जहां अधिवक्ता ने MVI अधिकारियों से पिछले 3 दिनों से ट्रक पकड़कर रखने की पहले वजह पूछी, जिसके बाद MVI अधिकारियों ने अधिवक्ता से कहा कि ट्रक ओवरलोडिंग है, इसलिए उन्होंने ट्रक को पकड़ रखा है, जिसका फाइन MVI अधिकारियों ने कुल 30,000 रुपए बताए, जबकि ट्रक में अंडर लोडिंग थी, जिसका कागजात भी अधिवक्ता को ट्रक मालिक ने उपलब्ध करवा दी थी, जिसके बिना पर अधिवक्ता ने MVI अधिकारियों को कहा कि वह उनके द्वारा ओवरलोडिंग की लगाई गई फाइन को भरने के लिए तैयार है, पर अगर ट्रक अंडर लोडिंग हुई तो क्या वह ट्रक को ओवरलोडिंग कर देंगे, जिसका वह फाइन भर रहे हैं। अधिवक्ता की इस बात पर MVI अधिकारी भड़क गए और अधिवक्ता के साथ अभद्र भाषा के इस्तेमाल और धक्का मुक्की कर साथ में उसे दलाल बोलकर यह भी कर डाला कि उसके जैसे वकील उन्होंने बहुत देखे हैं। ये है कि एक राजस्थान का गाड़ी था जो 27 तारीख को RJ 02 GC 6617 रजिस्ट्रेशन नंबर है गाड़ी का। तो 27 तारीख को वहाँ का RTO रामपुर से का RTO लोग उस गाड़ी को ओवरलोड के नाम से पकड़ करके गाड़ी को अपना पार्किंग में अंडर में कर लिया। करने के बाद में वो जो उसका ड्राइवर था वो बार बार उन लोगों के पास में जाता था काउंटर में और बोलता था, सर मेरा गाड़ी तो अंडर लोड है, मेरा कांटा स्लिप देख लीजिए और गाड़ी का जो फाइन आपको लगता है, जो प्रॉब्लम है उसको आप लोग क्रिएट करके हमारा गाड़ी छोड़ दीजिए। बोला सुबह आओ, शाम आओ, अभी नहीं होगा, शाम को होगा। उसके बाद में 29 तारीख को उसका ऑनर हमको फ़ोन किया। ऑनर फ़ोन करने के बाद में हम वहाँ पर गए एज ए कोर्ट आवर 10:30 बजे। तो हम वहाँ पर जा कर के ये बात के बारे में बोले कि सर आप 3 दिन से गाड़ी क्यों रोक के रखे हैं, इस गाड़ी को जो है रिलीज़ कीजिए, क्या प्रॉब्लम है। तो बोले गाड़ी में ओवरलोड है। तो हम बोले ठीक है सर, गाड़ी में जब ओवरलोड है तो एक काम कीजिए, जितना आप ओवरलोड का फ़ाइन काटिएगा उतना मेरा गाड़ी में आप तो माल दीजिएगा। तो बोले मिस लैंग्वेज बिहेव किया और मेरे को धक्का धक्की करके मेरे को बोला कि तुम्हारा जैसा यहाँ कितना वकील आया और कितना वकील चला गया, तुम यहाँ दलाली करने आता है, जो कि इस लेकर के हम वहाँ पर फाइट भी कुछ देर किए, लेकिन उन लोग हमको धक्का दे करके वहाँ से भगा दिया। जो हम अपना फिर कोर्ट आवर का टाइम हो रहा था, जो हम फिर वहाँ से वापस अपना डायरेक्ट कोर्ट चले आए। इसके बारे में हम कमिश्नर को भी जानकारी दिए, उसका सीनियर अथॉरिटी ममता बनर्जी को भी चिट्ठी किए, SDO को भी चिट्ठी किया और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी चिट्ठी की। जब वहाँ तक कोई न्याय नहीं मिलने के कारण आज का डेट में, आज 18/9/2025 को हम अपना कोर्ट के शरण में आज केस फाइल किया। तो वो जो ड्राइवर है उससे पैसा भी लिया गया, कागजात भी लिया गया? हाँ, 2000 रुपया पैसा भी ले लिया था और कागज भी ले लिया था। तो ये और रात का टाइम में वो लोग उसको पीटा भी था बाहर निकाल के। तो ये 2000 का कोई रसीद तो नहीं दिया? कोई रसीद नहीं। और गाड़ी और इन लोगों का वहाँ दलाल है, जो दलाल लोग के माध्यम से क्या करता है, वो लोग
प्रत्येक गाड़ी के पीछे 2000 रुपया लेता है। उसमें अगर कोई भी प्रकार का ओवरलोड हो या गाड़ी का कोई भी पेपर फेल हो, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। वो लोग डायरेक्ट उस गाड़ी को छोड़ देता है हवा के माध्यम से। और रात के टाइम में ये लोग क्या करता है कि 5-7 आदमी जो है, जो अनऑथराइज पर्सन है, उन लोगों को लेकर के ड्रिंक कर करके गाड़ी को फिर ओवरटेक करा करके पकड़ करके और उन लोग ढुकाता है। और सरकारी ऑफिसर ऐसे कांड कर रहा है। देखिए, ये तो घटना जो है ये जांच का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी घटना का क्रम हुआ है उसको लेकर के हमारे जो अधिवक्ता जी कंप्लेन दिए, कमिश्नर ऑफ पुलिस को दिए, बार के पदाधिकारी को दिए और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को दिए और भी अथॉरिटी को दिए। यदि घटना का कंप्लेन होने से उसका कोई ना कोई तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है तो इसका मतलब होता है कि कोई भी कार्रवाई किसी भी कंप्लेन पर नहीं होगी, वो कंप्लेन बेकार हो गई। जब इतने दिन के बाद में ये घटना है आपका 19/7/2025 की, 29/7/2025 की। जब कोई घटना में कोई भी एक्शन नहीं हुआ तो ये और भी वकीलों के मार्फत से हम लोगों के पास में जब ये मामला आया कि ये घटना है, तो हम लोग को लगा कि नहीं, ये घटना एक वकील के साथ जब ऐसी होती है तो और लोग के साथ क्या हो सकता है। ये तो बहुत ही निंदनीय घटना है। एक मामला होता है तो उस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी कार्रवाई हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, उस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई जब नहीं हुई, जब ये हार मान गए, तब हम लोगों ने बोला कि नहीं, अब ये कानून का सहारा लेना ही पड़ेगा। तब आज जो है हम लोग कोर्ट में आकर के एक मामला दायर किए। जो ऑफिसर वहाँ पर थे जिन्होंने मिसबिहेव किया, उनके विरुद्ध मामला हुई है। मामला का तदंत होगा। जो ऑफिसर दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई। मैंने धारा के अनुसार आरोप क्या क्या लगाया कि देखिए, यहाँ पर तो 356 सब क्लाउज 1 है, 356 सब क्लाउज 2 है, 351 BNS के तहत लगाया गया है। आज अगर एक वकील कहीं भी जाते हैं तो अगर मान लीजिए उनको ये बोला जाए कि दलाल है, तो ये तो पूरा वकील जाते के ऊपर एक मान लीजिए प्रहार हो गया। तो ये बोलने आप का काम करिए मत करिए एक अलग बात है। आप सीधे बोल सकते थे कि हम आपका काम नहीं करेंगे, लेकिन आप दलाल क्यों बोले? दलाल थोड़ी है। ये बोलने का कारण क्या है? उन लोगों का प्रॉफिट में कुछ देखिए, अब ये देखिए वो क्यों बोले, ये तो वो जवाब वो देंगे। वो बोले हैं तो जवाब वो देंगे, हम क्यों देंगे उनका जवाब? हम क्यों देने जाएं? वो क्या समझ कर बोले हैं दलाल, तो उनसे पूछा जाएगा। अथॉरिटी उनसे पूछेगी कि वो दलाल किस लिए बोले, क्या वो दलाली किए, क्या किए, तो उनका जवाब तो वो देंगे। वो हमको बोले हम इससे परेशान हैं, इसलिए हम कोर्ट में आए हैं कि हमें न्याय चाहिए। हमने कोर्ट को कहा कि हमको न्याय चाहिए, इस मामला का पूर्ण तदंत होना चाहिए और दोषी ऑफिसर को विरुद्ध में कार्रवाई होनी चाहिए। यही हमारी मांग है। आपका नहीं तो संजय पांडे, एडवोकेट संजय पांडे आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नमस्कार। की खबर पक्की है कि भाई अब तो सभी बोलते हैं चाप मतलब वीर जी, एंड वीर जी मलाई चाप वाले फ्रॉम गीता कॉलोनी, द फेमस चाप जो टेस्टी है, हेल्दी है, साफ है। अब हमारा नया आउटलेट लेकर आ रही है 25 सितंबर को शाम 7 बजे GT रोड ऑपोजिट LIC ऑफिस नियर AG चर्च स्कूल, आसनसोल, वेस्ट बंगाल, जहां आपको मिलेगा सबसे हेल्दी, सबसे टेस्टी चाप विच इज फिश, चिकन, मटन, ऑल प्योर वेज। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी और मैं आप सबसे मिलता हूं 25 सितंबर को। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुर हाट में एक नाबालिगा की सड़ी गली लाश मिलने के बाद श्याम पहाड़ी श्री रामकृष्ण शिक्षा पीठ स्कूल के शिक्षक और प्रधानाध्यापक ग्रामीणों के गुस्से का शिकार हो गए। इस घटना से पूरे इलाके में जबरदस्त तनाव फैल गया है। बारो में एशिया गांव में बीते बुधवार को एक नाबालिगा की लाश बोरे में बंद अवस्था में बरामद हुई थी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने इस मामले में स्कूल के एक शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है।
गुरुवार सुबह जब शिक्षक और शिक्षिकाएं स्कूल पहुंचे तो आक्रोशित ग्रामीणों की भारी भीड़ ने उन्हें घेर लिया। भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में ही स्कूल के प्रधानाध्यापक को बुरी तरह पीटा। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाया। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर बांस और लाठियों के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन के कारण रामपुर हाट से झारखंड और बिहार जाने वाला मुख्य रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया, जिससे यातायात ठप हो गया। पुलिस ने हालात को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है। मृत नाबालिका के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर भी गंभीर आरोप लगाए। बताते चले कि 2018 में भी इसी इलाके में ऐसी एक घटनाएं हुई थी जिसने लोगों को सहमा दिया था। अब फिर से ऐसी दर्दनाक घटना सामने आने के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। प्रशासन पर जल्द न्याय दिलाने का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। ভাই তুমি যাবো কোথায়? কসমো বাজার, শার্প বিকেল 4:30। এই দেখ, ওরাও এখানে চলে এসছে। ধরবো নাকি ব্যাগটা? কথা রাখলাম। চয়েস ভালোই, কিন্তু কার জন্য? এই পুজোয় যাকে ভালো লাগবে তাকেই দেব। কসমো বাজার পুজো শপিং টু প্যান্ডেল হপিং, সঙ্গে রয়েছে দারুণ আকর্ষণীয় উপহার। এসেছে সময় এবার জমিয়ে নাচা, পুজোতে শপিং মানে কসমো বাজার, প্যান্ডেল হপিং মানে কসমো বাজার। কসমো বাজার পুজো শপিং টু প্যান্ডেল হপিং, সঙ্গে রয়েছে দারুণ আকর্ষণীয় উপহার। दुर्गा पूजा से पहले आज सामाजिक संस्था प्रयास की महिला संगठन नारी बंधन की तरफ से रानीगंज के स्कूल मोड़ इलाके में 170 जरूरतमंद महिलाओं को साड़ी प्रदान की गई। इस मौके पर यहां प्रयास संस्था के संस्थापक पिंटू गुप्ता और संस्था के अन्य सदस्य उपस्थित थे। पिंटू गुप्ता ने बताया कि प्रयास संस्था की तरफ से लगातार इस तरह के सामाजिक कार्य किए जाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग प्रयास संस्था के तरफ से हमारी जो महिला शाखा है नारी बंधन, उसके तरफ से हर साल हम लोग दुर्गा पूजा में जितना हो सकता है अलग अलग जगहों पर जाकर और साथ ही साथ घर घर जाकर हम लोग जरूरतमंद जितनी भी हमारे माताएं बहनें हैं उन सबको हम लोग दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में साड़ी देने का काम करते हैं। पिछले कुछ दिनों से हमारे मेंबर्स डोर टू डोर जाकर साड़ी दे रहे हैं और आज बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारे ज़रूरतमंद महिलाओं की संख्या थी, जिसके कारण हम लोगों ने यहाँ आज स्कूल मोड़ में कैंप लगाया और लगभग 170 ज़रूरतमंद माताओं बहनों को दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में साड़ी भेंट करके उनसे अपना आशीर्वाद लेने का काम किया। अच्छा, घर घर जाके जो मैंने साड़ी डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रदान किया जा रहा है, ये सिस्टम कैसा, मतलब कहाँ तक अभी तक हुआ, किस किस वार्ड में किए हैं या
किसकी वार्ड के हिसाब से हम लोग नहीं करते हैं। हमारे जो मेंबर रहते हैं वो अपने घर के आसपास जो उनको जरूरतमंद दिखाई देते हैं, 2-4 ऐसे महिलाएं जिनको वो शायद यहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग उन लोग को घर घर जाकर ही वहाँ पे हमारे मेंबर जाते हैं और उनके घर पे जाकर उनको साड़ी देने का काम करते हैं। विशेष गेस्ट रूप से आज कौन कौन यहाँ प्रेजेंट? आज मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी श्री संजय बाजोड़िया जी, ललित झुंझुनवाला जी, अरुण भारतीय जी, अर्चना साहू जी, शरद जगनानी जी एवं और भी बहुत सारे रानीगंज के समाज सेवी यहाँ उपस्थित थे। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम पिंटू गुप्ता है, मैं इस संस्था का संस्थापक हूँ। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवी संजय बाजोड़िया, ललित झुंझुनवाला, अरुण भरतिया, अर्चना साहू, शरद जगनानी के अलावा विशिष्ट लोग उपस्थित थे। जितनी बड़ाई की जाए वो कम है। हर मौके पे अपने गरीबों की सहायता करना, हर चीज में आगे बढ़ना। धन्यवाद। प्रयास फाउंडेशन की तरफ से जो कार्य हो रहा है बहुत ही अच्छा। महीना 2 महीने में ये बोलता है हमको ये करना, हमको वो करना है। इतना सामाजिक काम में ये व्यस्त रहता है, अपना व्यस्त लाइफ में से समय निकाल। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमेशा इसी तरह हम लोग उनका सपोर्ट करें और जितना भी हम लोग से हो सके हम उसका हमेशा सपोर्ट करें। उनका ये कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है। वो हमारे पिंटू जी बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं निःशुल्क। इनकी एक स्कूल चलती है। दुनिया में हम लोग सब कुछ दे सकते हैं बच्चों को, लेकिन शिक्षा देने से उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। ভাই তুমি যাবো কোথায়? কসমো বাজার, শার্প বিকেল 4:30। এই দেখ, ওরাও এখানে চলে এসছে। ধরবো নাকি ব্যাগটা? কথা রাখলাম। চয়েস ভালোই, কিন্তু কার জন্য? এই পুজোয় যাকে ভালো লাগবে তাকেই দেব। শপিং মানি কসমো বাজার, প্যান্ডেল হপিং মানি কসমো বাজার। পুজোতে শপিং মানি কসমো বাজার, প্যান্ডেল হপিং মানি কসমো কসমো বাজার, পুজোর শপিং টু প্যান্ডেল হপিং, সঙ্গে রয়েছে দারুণ আকর্ষণীয় উপহার। पूरे देश और राज्य में भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। पश्चिम बर्धमान जिले के पांडवेश्वर के भाजपा कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री को बधाई देने से नहीं चूके। इस दौरान गीता बांटी गई और सभी का मुंह मीठा कराया गया। पांडवेश्वर के भाजपा कार्यकर्ता अपने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर बहुला बाजार में पांडवेश्वर भाजपा मंडल 2 के अध्यक्ष वेणुधर मंडल की पहल पर मिठाई वितरित की गई। इस दौरान पूर्व विधायक और भाजपा नेता जितेंद्र कुमार तिवारी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर लोगों को मिठाई वितरित की गई। सड़कों पर चलने वालों और बहुला बाजार की विभिन्न दुकानों में मिठाई शील जामाद में घर घर जाकर गीता का वितरण किया गया। इस संबंध में भाजपा नेता जितेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। वे 75 साल के हो गए, इसलिए बहुला में उनके जन्मदिन के अवसर पर कई लोगों को मिठाई वितरित की गई और गीता वितरित की गई। इस गीता को वितरित करने का कारण यह है कि पांडवों के अधर्म का नाश और धर्म की जय हो। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नमस्कार, की खबर पक्की है कि भाई अब तो सभी बोलते हैं चाप मतलब वीर जी, एंड वीर जी मलाई चाप वाले फ्रॉम गीता कॉलोनी, द फेमस चाप जो टेस्टी है, हेल्दी है, साफ है,
अब हमारा नया आउटलेट लेकर आ रही है 25 सितंबर को शाम 7 बजे GT रोड ऑपोजिट LIC ऑफिस नियर AG चर्च स्कूल, आसनसोल, वेस्ट बंगाल, जहां आपको मिलेगा सबसे हेल्दी, सबसे टेस्टी चाप विच इज फिश, चिकन, मटन, ऑल प्योर वेज। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी और मैं आप सबसे मिलता हूं 25 सितंबर को। गुरुवार दोपहर कादा रोड मोड़ के समीप वार्ड नंबर 13 में दुर्गापुर नगर निगम प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य एवं पूर्व पार्षद धर्मेंद्र यादव के तत्वाधान में नाले के निर्माण कार्य की शुरुआत की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह नाला कादा रोड मोड़ से अमराई ओवर ब्रिज तक दोनों ओर बनाई जाएगी, जिसकी लागत लगभग 28 लाख रुपए बताई गई है। इस कार्यक्रम में नगर निगम बोर्ड की चेयरपर्सन अनिंदिता मुखर्जी, प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य धर्मेंद्र यादव, वार्ड अध्यक्ष लाल बाबू सहित कई कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर किया गया एवं इस मौके पर अनिंदिता मुखर्जी तथा धर्मेंद्र यादव ने अपने अपने वक्तव्यों को रखा। वहीं स्थानीय लोगों और दुकानदारों में इस परियोजना को लेकर खुशी देखी गई और उन्होंने नाले के निर्माण में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। थोड़ा सा भी बारिश होने के कारण ये पूरा ब्रिज के नीचे पानी, और इसके पहले भी जब 95-90 के समय में भी रोड के आसपास पानी जमा रहता था, कहीं निकलने का व्यवस्था नहीं था। उस समय तो खैर हम लोगों की कॉर्पोरेशन नहीं था या बाद में भी हाई ब्रिज नहीं था तो उतना पता नहीं चलता था। लेकिन जब से हाई ब्रिज बना 2014 के बाद से ही हर साल हम लोगों की ये समस्या थी। कहीं ना कहीं 13 नंबर और 34 नंबर और दोनों साइड का रास्ता ड्रेन देखेंगे तो कहीं ना कहीं इससे बहुत अच्छा बन गया है। कहीं पर उतना अधिक पानी की रुकने का या पानी डूबने का समस्या अभी नहीं के बराबर रहा। एक पिछले 3-4 साल पहले पूरा गोपाल मठ से लेकर तमला तक 34 नंबर साइड में हम लोग KMDA के थ्रू दुर्गापुर नगर निगम के द्वारा ही लगभग 4 करोड़ रुपया का खर्च कर हम लोगों ने हाई ड्रेन उधर बनाने का, कवर ड्रेन बनाने का काम किया था। तब जाकर धर्मेंद्र जी উনি কিন্তু বলেছেন যে দুর্গাপুর নগর নিগম বেশি কথা বলে না, তারা কাজে বিশ্বাসী। কাজে আমরা কাজটা করতে চাইছিলাম, আর যা বলার এত সুন্দর করে উনি বক্তব্য রেখেছেন যে আমার আর বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তবু এটাই বলবো যে দীর্ঘদিনের আপনাদের সমস্যা, দীর্ঘদিনের দাবি ছিল যে এখানে ড্রেনের নিকাশি ব্যবস্থা না থাকার জন্য আপনাদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। 2 বছর ধরে অনেক চেষ্টা করে এবং অক্লান্ত পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টা ধর্মেন্দ্র যাদবজি রয়েছে। তার সঙ্গে অতি অবশ্যই যাদের কথা অনস্বীকার্য, আমার পাশে আছেন আমার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, বিশ্বাস সাহেব, আছে ভাই অর্ঘ, এবং এই কাজটা যে পেয়েছে আমার ভাই পঞ্চান সিংকে আমি অনুরোধ করবো যে কাজটা যেন অত্যন্ত সুন্দরভাবে হয়। এতদিন পরে এটার অনুমোদন হয়েছে, কাজে কাজটাতে যেন কোনো প্রকার ত্রুটি না থাকে এবং আপনারা যারা আছেন এই। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नमस्कार, की खबर पक्की है कि भाई अब तो सभी बोलते हैं चाप मतलब वीर जी, एंड वीर जी मलाई चाप वाले फ्रॉम गीता कॉलोनी, द फेमस चाप जो टेस्टी है, हेल्दी है, साफ है। अब हमारा नया आउटलेट लेकर आ रही है 25 सितंबर को शाम 7 बजे GT रोड ऑपोजिट LIC ऑफिस नियर AG चर्च स्कूल, आसनसोल, वेस्ट बंगाल, जहां आपको मिलेगा सबसे हेल्दी, सबसे टेस्टी चाप विच इज फिश, चिकन, मटन, ऑल प्योर वेज। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी और मैं आप सबसे मिलता हूं 25 सितंबर को।